please. You can see the kids also. Previous slide, you please. Do the previous slide, yeah. See, among the kids also, how teacher is trying to convince the importance of, you can say, group dynamics. See, all the kids are interested. What teacher is saying. Hey, we enjoy that, what is that game, no? A musical chair race. We enjoy or not? That starts from group and every member enjoys that. Okay, next slide please. See, circle time is a dynamic approach to group learning that fosters inclusivity, communication and cooperation among participations. As I told in my previous slide, if you motivate the students for participation, they will definitely in the habit of participation and they will be also the member of group dynamics, which is another source of learning. So here are some key points on how to effectively use group dynamics during circle time for learning. So let us have the glance please. Next slide. Encourages inclusivity. We have to encourage the students, though you have the, that courage. You have the tendency, you have the level to do, to perform. Whether he or she is not ready, but if you motivate, they will be definitely ready to perform, and this will be the way of learning through the, you can say, group activity. Equal participation. Circle time ensures that every participant has an equal opportunity. There should not be any favoritism, partiality. It should be fully impartial and crystal clear, so that there will be not a single moment of negative aspects in the minds of the kids or students. Okay, this is the basic point. And to contribute promoting a sense of belonging and respect among all group members. All members are respected. Whoever is participating, all are respected. Okay, there should not be any discrimination. No, you are the best. No, you are trying. No, all are the best. Just keep in mind these things. It will work on. And diverse perspective, by allowing everyone to share circle time, brings together diverse viewpoints and experiences, enriching the learning process. सबको अगर आप मौका दे रहे हैं तो सब सीखता है और सबके अंदर इक्वलिटी आ जाता है. किसी के अंदर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा. नहीं, सब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे परफॉर्म करना चाहिए. दूसरे को देख के भी लोग इंस्पायर हो जाते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फॉस्टर्स कम्युनिकेशन स्किल्स. ये बहुत बड़ा चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करना. टू कम्युनिकेट विद द पीपल इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स एन हार्कुलियन टास्क. ठीक है, इसको आपको कम्युनिकेशन को इनहेंस करना ही करना है. एक्टिव लिसनिंग है. एक अच्छा लिसनर होगा, जैसे आप लोग सभी एक्टिव लिसनर्स हैं, अभी सब एक्टिवली सुन रहे हैं. LSRW आर द 4 रेस्पेक्टिव पिलर्स ऑफ एनी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज. L फॉर लिसनिंग, S for speaking, R for reading, whereas W for writing. These are the 4 pillars of any respective language in which we want to opt. ठीक है, तो एक अच्छा लिसनर भी बनना है, चीजों को सीखना है. ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सुनकर ही सीखते हैं, कभी कभी पढ़ते भी हैं. कोई पेपर आर्टिकल पढ़े, कोई न्यू वर्ड मिला, सेंटेंस फ्रेज मिला, आप उसको ग्रैब कर लिए. सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज. तो लिसनिंग प्लेज वेरी पाइवेटल रोल ऑफ नॉलेज और लर्निंग. ठीक है, आर्टिकुलेशन विच माई डियर सर हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ही स्लाइड्स. ठीक है, जैसे मैं इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कौआ और कोयल का. लगभग रूप एक जैसा ही होता है, लेकिन उसके क्या वाणी से, उसके आवाज से हम समझ जाते हैं कि कौन सा कौआ है, कौन सा कोयल है. सो इट ऑल्सो प्लेज वेरी पाइवेटल रोल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप. आई रिमेंबर आई डिस्कस दिस. ट्रस्ट, बिलीव. ठीक है, बिलीफ यू कैन से. तो ये बहुत बेजोड़ चीज है. अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है. नथिंग विल वर्क आउट, ऑल विल गो इन वेन. सब वह चला जाएगा, बेकार चला जाए. तो ट्रस्ट हैज टू बी बिल्ड अप. और एक्सपीरियंस को आप शेयर करेंगे, इंगेजिंग इन डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज. हम लोग एक्टिविटीज भी करा सकते हैं. कुछ डिस्कशन के लिए टॉपिक्स को छेड़ दिए, आप उसमें डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आइडियाज सभी कोई वॉमिट करेंगे. अंडरस्टूड?
And in this way, we are enhancing learning. So different criterias and manners are there to share knowledge. So engaging discussion activities helps build rapport and trust among participants. What do you mean by rapport? It's not report, rapport. What is that? Any idea? Yeah. Tell ma'am. Hmm? Cordial relation. It's one of the characteristic of this. You are almost right. Image you can say. Good character. No, his behavior, his attitude, his gesture. Okay. So, group cohesion, regular circle time strengthens bonds within the group, creating a supportive learning environment. Definitely. Group makes all the members very active and prominent and important. And they finally implement this in their further steps of learning. Why? Because they are in the habit of this. Okay, so group play. आप कोई भी गेम ले लो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, अगर एक मेंबर से भी गलती हो जाएगा तो हार जीत हो सकता है. आप मान रहे हो ना इस बात को? स्लाइट मिस्टेक भी हो जाएगा तो पूरा गेम पलट सकता है. बात समझ रहे हैं ना? तो वी हैव टू शो ग्रुप डायनेमिक्स, द इंपैक्ट्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स. इसका एक अलग है. अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप में किसी का निंदा कर रहे हैं, सब मिला लिए, निंदा लोग को बुलाएं, क्रिटिक्स लोग को बुलाएं, फलना टीचर बेकार, पढ़ाने आता नहीं, कैसे हो गया. अंडरस्टूड? हाँ, अब मजा लेने वाला और भी आ रहा है. सो इंस्टीड ऑफ दैट, अगर आप कोई अच्छा टॉपिक पे डिस्कस करें, नहीं बहुत अच्छा है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ योर कुरिकुलम और स्कूल, अगर ये टॉपिक में आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, नहीं भाई हम लोग का जो लैकिंग है, प्रिंसिपल खुश नहीं है, तो हम लोग को ये चीज में ओवरकम करना है, इसको सही में सुधारना है, तो देखिए ग्रुप का पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाएगा फिर. वाई? बिकॉज यू आर शोइंग टीम स्पिरिट. I will show you one video that will surely inspire you. Okay, next slide please. Encourages collaborative learning. Collaborative means teamwork, help, assistance. ठीक है, cooperation. ये कोई भी नहीं बोलता है अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा. Understood? So we need to have group, team spirit, collective noun. ठीक है, अगर ये टीम वर्क नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है. There should not be any jealousy. There should not be any type of discrimination. There should not be any negativity in your mind. Okay? और इस ग्रुप को अगर आप परफॉर्म करते हो अच्छे से, nobody can stop you. Okay? So group problems भी है, कुछ सॉल्विंग है, जैसे collaborative activities during circle time promote teamwork and collective problem solving skills. Peer learning, participants learn from each other's experience and insights, enhancing their understanding of subject matter. आप ये देखो, इस पिक्चर में साफ देख सकते हो. जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, आप होमवर्क दे दिए, नहीं बनाया, दे कॉपी फ्रॉम देयर क्लासमेट्स. कुछ ऐसा भी है, ए हाउ यू हैव सॉल्व दिस. मान लीजिए किसी कारण वो एब्सेंट था, नहीं समझ पाया, तो वो उसको बताया आई मेड दिस इन दिस वे, तो वो सक गया. तो ये देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट है कि नहीं ग्रुप लर्निंग का. अंडरस्टूड? अगर ये ग्रुप में कॉपी पेस्ट हो जाएगा सब होमवर्क, तो वो लर्निंग नहीं हुआ. लेकिन अगर वो ये सीख जाएगा कि कैसे बनाया, व्हाट इज द वे ऑफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और सम, तो ये हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रुप लर्निंग. और हम लोग कोई भी मीटिंग वगैरह करते हैं ग्रुप वाइज, तो अलग अलग आइडियाज मिलता है कि कैसे किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें, और उसके बाद देखिए एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है और वो इंप्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली. Unplanned way वाला nothing will work out for the students also. Okay, next slide please. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे. How many of you are knowing Santhali? Please stand up. I want one teacher only. जल्दी जल्दी, without delay. Anybody Santhali? One who speaks Santhali? Please come. Come with me, please come. I cordially invite you. You will enjoy this small activity. Please come. One teacher come for Bengali. Please. One for English also. One for Sanskrit. Jha sir, please come for Sanskrit also. One line only. Come sir, please. What you have to, please come.
These options are there. Anybody knows Urdu, Abdi, Mizorami, Khota, Maithili, Angika, any other? Please come, ma'am, without delay. Come. So we have, ma'am, which language you are going to speak? Maithili. Okay, sir, you are speaking Santhali. Please, sir, come for Sanskrit. Okay, ma'am, you are coming for which language? Please come. Do come. Ma'am, you? Very good. Come. And one teacher for any other language apart from this? Apart from this list of languages, any language you know which are not introduced here? Okay. Anybody? You are coming, sir. Which language? Yeah, come. Anybody knows Bhojpuri? Nobody? Don't feel shy. Come here and tell hi. Okay. I will again encourage you to participate, not escape. So see, okay, I cordially welcome you and thank you, sir, in advance, all teachers. Okay, see what you have to do in this activity. I am a teacher and teaching is my passion. You have to translate in their respective languages. What do you have to say? I am starting from English, okay? I am a teacher and teaching is my passion. So let us begin. अहम एकः अध्यापकम् अस्मि एवः अध्यापनं मम उद्वेगम् अस्ति. Thank you, sir. Yeah. Next. Very good, sir. Please stay. I'm going to speak in Angika, so it is difficult to listening and talking also. हमें मास्टर छिके ना पढ़ाना हमरा काम छिके. Thank you. हम एक शिक्षिका छी आ शिक्षण के कार्य हमरा ले बहुत ही नीक ये आ हम चाहे छी कि हमारी शिक्षण कार्य से अहाँ सब जरूर लाभान्वित भए. ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ. আমি একটি শিক্ষক, পড়ানো আমার পেশা। अहम अहम संस्कृत शिक्षिका अस्ति। संस्कृतो मम प्रिय भाषा अस्ति। So what did you notice, my dear teachers? What did you notice? Different languages are there of learning or not in the same stage? Cultural harmony? Do you agree? So please clap for them and I request to give them the powerful weapon that is pen. Sir, thank you so much, all of you. So see, multilingualism. We are enhancing here NEP is going to introduce or not? All the respective languages are, you know that, respected in this field. Next slide, please. We have already discussed about this in my first slide, and sir has also discussed. Same thing, enhances emotional and social development. What is the difference between sympathy and empathy? Who will differentiate? Both are similar. Sympathy and empathy. Sympathy is to feel pity on that person. हाँ. और empathy is that कि we are feeling the pain that you are having. उसके कष्ट को मैं खुद अपना कष्ट समझकर उसको महसूस करती हूँ, वो एम्पैथी है. और सिंपैथी में उसके कष्ट से बहुत दुखी हूँ. What a fabulous answer. Clap. So ये देखिए, हम लोग को एम्पैथी का यूज करना है. Sharing personal experiences and feeling helps participants develop empathy and emotional intelligence. पत्थर दिल भी टूट जाएगा अगर आप उसको इमोशन होकर जगा देंगे. नहीं बोलता बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी. जैसे याद कीजिए, एक चैप्टर था फिर इंग्लिश में, रामानंद शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे. तो एक टीचर आएगा, ये मैं टीचर की निंदा नहीं कर रहा हूं. तो वो टीचर एक आए, पंडित से, ब्राह्मण थे, और वो दोनों बैठता था, खाता था, पढ़ता था, सब साथ. They were very good friends. One was highly from orthodox family, Brahman,
एंड वन फ्रॉम मुस्लिम. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट ये रियल लाइफ में है. माई चाइल्डहुड बोल के एक चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा. तो पता है उसमें एक सर आए जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर थे, उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे कर दिया. यू गो सिट बैक साइड, सिट अलोन. ये चीज दोनों को बहुत बुरा लगा, समझ नहीं पाए. दे वर इन 5th स्टैंडर्ड्स, समझ ही नहीं पाए क्या हुआ. ठीक है, उसके बाद दोनों घर में जाके अपने अपने पेरेंट्स को बोला. तो रामानंद शास्त्री जो थे वहां पे मंदिर के पुजारी के बेटे थे, वो आके उस टीचर को डांट फटकार किए कि आपको कोई राइट नहीं है इन मासूम बच्चों के अंदर जाति रूपी जहर घोलने का. देन द टीचर इमीडिएटली रियलाइज कि मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, आई शुड नॉट डू दिस. तो होता है, हम लोगों से भी एरर्स हो सकते हैं, बट रियलाइज इज द मेन थिंग. जैसे यहाँ टीचर ने किया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया. अगेन दे स्टार्टेड टू सिट टुगेदर, ईट टुगेदर एंड स्टडी टुगेदर. तो होता है ऐसे. तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड, क्रीड, सुपेरियरिटी, इंफेरिटी, इंटेलिजेंट, वीक, एवरेज. नथिंग टू डू दिस. ऑल आर इक्वल. ओके, ऑल ग्रुप इज टीम वर्क. ठीक है, आप कोई भी देखो स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें हर कास्ट के लोग हैं, उससे मतलब नहीं है. टीम एक है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जीत होता है तो किसका नाम होता है? इंडिया. एम आई राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फैसिलिटेट्स लीडरशिप एंड फैसिलिटेशन skills. Role of facilitator. Circle time often involves a facilitator who guides discussions, activities and providing opportunities. सबों को बराबर मान रहे तो अपॉर्चुनिटीज तो देंगे. अब जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो भागा पछताया, जो भाग लिया आगे गया. अगेन आई एम फोकसिंग दिस. ओके, एंड आप देख सकते हो एक लीडरशिप भी आता है, पार्टिसिपेंट लीडरशिप आता है. पार्टिसिपेंट्स कैन take turns leading discussions or activities which builds confidence and leadership abilities. देखिएगा बहुत कोई बहुत साई नेचर का होता है, लेकिन वो जैसे ही जैसे प्रैक्टिस कर दे बहुत बोल्ड हो जाता है. Why? Because of practice. Why? Because of opportunities and availing the opportunities is the best thing. अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, नहीं बोलता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर. ये आप प्रोवर्ब सुने होंगे. ठीक है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज व्हेनेवर यू आर गिवन. जैसे हमारे शुक्ला सर ने कहा कि अचानक से एक्सटेम्पोर होता है कि आपको पता नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा स्टेज में, लेकिन अगर आप अच्छा ओरेटर हो तो कोई भी टॉपिक में आपके पास प्रैक्टिकल आइडियाज है, यू कैन डिलीवर. इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज टेकिंग दिस. बिलीव मी, आई वाज नॉट इन्फॉर्म दैट आई विल बी हैव टू स्पीक, आई विल हैव टू डिलीवर स्पीच. इट वाज रैंडमली कॉल्ड एंड आई स्पोक. तो प्रैक्टिस था, इसीलिए हो गया. अगर प्रैक्टिस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता तो नहीं होता. And among all other awardees, I only got the opportunity to speak. That was surprising moment for me. तो अच्छा लगा कि छोटे जगह से भी लोग बड़े बड़े बम फोड़ सकते हैं, बस कलम का ताकत होता है. अंडरस्टूड? थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड. सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है. सर्कल टाइम इनकरेजेस चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट पॉजिटिविटी with each other and to take turns, listen and value everyone's contribution. सबका कंट्रीब्यूशन को आप क्या कर रहे हो? एप्रिसिएट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, अप्लॉज कर रहे हो. किसी खास को आपको नहीं आगे बढ़ाना है, इक्वल दर्जा देना है. तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगा. दे विल बी ऑप्टिमिस्टिक, दे विल बी फुल ऑफ इंथुजिज्म विद द ऑप्टिमिज्म. देयर विल बी नो चांस फॉर पेसिमिज्म. समझ में आया? सो सब खुश हो जाएंगे. क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसे इक्वल दर्जा दिया है. नेक्स्ट. एक मिनट, पॉज इट प्लीज. एक वीडियो देखिए और इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या मैसेज देना चाह रहा है इस वीडियो में. आपके पास इस वीडियो के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं. इट्स अ शॉर्ट वीडियो, एंजॉय दिस. ओके जूली, प्लीज प्ले इट. ओलंपिक सर पे था, कहने को हमारा टीम बन गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारा टीम का बीच में बहुत सारा छोटा छोटा टीम बन गया था. पंजाबी के साथ, बॉम्बे वाले के साथ, नॉर्थ इंडियन अलग, ईस्ट इंडियन अलग. हम दोनों को लगा कि हमको इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा. चलो बच्चे लोग, भागो जल्दी आओ, भागो जल्दी. हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना. आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए. नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं.
आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक, चलो चलो जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईंटा धोने आए। अब दादा इन लोग कैसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? जब तक नहीं समझेगा करता रहेगा। वापस लेके जाओ। नहीं सर, सर नहीं। हो गया सर। कोई सवाल? है जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, उठाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गया? लाइन फॉर्मेशन। अभी समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए Now you please tell what does this video give you message? टीम वर्क। अगर टीम स्क्रम्बल हो जाएगा, छोटे छोटे टीम बढ़ जाएंगे, amongst us also, ठीक है? No, she is good, she is bad, I will remain with him, she will remain with her, so this will not work out. हम लोगों को सबको अप्रिशिएट करना है, और हार जीत चाहे जो भी है टीम को पूरा सहना है। तब क्या हो जाएगा? किसी इंडिविजुअल को गाली तो नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग टीम के साथ कन्फेस कर लेंगे कि नो इट इज आवर फॉल्ट, इंस्टेड ऑफ इट इज हिज फॉल्ट, इट इज हर फॉल्ट, इफ यू से इट इज आवर फॉल्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा आपको, मैं ये इंश्योर कर रहा हूं। और अगर आप लोग यूनाइटेडली या हम लोग यूनाइटेडली कोई काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एप्रिसिएशन पूरे टीम को मिलता है। एम आई राइट और नॉट? So clap for all respective teachers. Okay, so this is the great example of teamwork which I tried to show you from this small video. So variety, teachers can switch up the routine to keep kids engaged, and some kids may prefer different activities on different days. कभी कभी होता है बच्चों का मूड नहीं होता है पढ़ने का क्लास में. You would have noticed or not? So what do? कैसे आप तब हैंडल करते हो क्लास को, या बेल बजने का इंतजार करते हो?
कुछ स्टोरी या बिल्कुल आप इंस्पिरेशनल स्टोरी बना सकते हैं. एनी अदर वे? कुछ आप वर्ड गेम प्ले करा दीजिए, एक्रोनियम्स का यूज करा दीजिए. अदर सब्जेक्ट्स में भी मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला का शॉर्टकट बता दीजिए, साइंस का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. तो बच्चा मोनोटोनस बिल्कुल नहीं होगा. लेकिन दिस शुड नॉट बी एवरीडे, समटाइम्स ओनली. ठीक है, सो दैट वी कैन अवॉइड मोनोटोनस क्लास. ओके, सो टीचर्स आर फुल ऑफ वेराइटी, और टीचर्स के अंदर कैपेसिटी होते हैं इंटरटेन करने का. वो भी इंटरटेन करते करते भी नॉलेज को ही इंप्लीमेंट करवा रहे हैं. ये हंसी मजाक में ही बच्चे इंजॉय करके सीख लेते हैं चीजों को. इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रिक्टनेस टू बी डन. नेक्स्ट देखिए, सर्कल टाइम एक्टिविटीज कैन इंक्लूड सिंगिंग. ठीक है, जैसे सर ने कहा, बहुतों को पता नहीं था, जब स्कूल का पिकनिक होता है तो पता चलता है वो अच्छे सिंगर है. हालांकि मैं भी अच्छा सिंगर हूं, इतना अच्छा सिंगर हूं कि मैं अगर गाना गाऊं तो गाय भैंस सिक्कड़ तोड़ के आ जाता है सुनने के लिए. दिस रेस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स. ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं हूं, मतलब ट्राई करता हूं भाई. सीखने में क्या है, आपके अंदर स्किल है, इनहेंस कीजिए. स्टोरी टेलिंग जो मैम ने कहा जस्ट नाउ, सी टोल्ड नो, स्टोरी टेलिंग देखिए ये पॉइंट में भी है. वाई? बिकॉज दीज आर द बेसिक एंड प्रोमिनेंट पॉइंट्स. ओके, ये सब भी आप इंटरटेन कर सकते हो. डिस्कशंस, चलो जी बताओ कि ये कंट्री में क्या, क्यों ये फेमस है, ये कंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इस प्लेस में क्या होता है, इस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स होता है. आपको आइडियाज जरूर मिलेगा अगर आप बच्चे डिस्कशंस करते हैं तो. करते हैं कि नहीं? एंड वी गेट आइडियाज और नॉट. समटाइम्स टीचर्स आर ऑल्सो गेटिंग आइडियाज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. कुछ अपडेशन, जैसे सर ने भी कहा था कि कुछ कुछ अपडेशन बच्चे हम लोगों से भी ज्यादा आगे हैं. हो सकता है आज का करंट न्यूज वो सुन के आए कि फलना एक्सपायर कर गए. यू आर नॉट नोइंग बिकॉज लास्ट नाइट आप सोए, स्कूल की तैयारी की आगे, अब पता चला 5:15 में सुबह में हुआ है, वो न्यूज में देख लिया, आपको वो न्यूज दे दिया, तो आप अपडेटेड तो नहीं थे, आप अपने बिजी शेड्यूल में. तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो शेयरिंग हीज रियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच ही हैज सीन. दैट्स वाई. तो सर्कल टाइम एक्टिविटीज कैन इंक्लूड सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड अदर कोलैबोरेटिव टास्क. जो भी कोलैबोरेशन वाला टास्क होता है आप उससे. अंतराक्षी क्या हम लोग अकेले खेलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए मैं हूं और सर हैं, दोनों अंतराक्षी खेल रहे हैं, तो टीम में अगर रहेगा देखिएगा कोई हारेगा नहीं, दोनों टीम में बराबर का फाइट होगा. भले ही आवाज सबों का, कुछ का बेसुरा भी होगा, कुछ कुछ का सुरीला भी हो सकता है, लेकिन टीम में मजा आता है कि नहीं, सीखते हैं कि नहीं, इंजॉय करते हैं कि नहीं. So this is the positive impact of collaborative task. Okay, next slide please. Some rules for circle time include raising hands to speak. जब भी आपको कुछ बोलना है, लेकिन कोई कोई जानबूझ के हाथ उठाता है. जैसे हम भी सुने, अमित झा नाम का कोई टीचर है, जब कोई सेमिनार में बार बार हाथ उठा लेता है, ऐसा लगता है कि उसको हाथे उठा के रहना चाहिए. तो ये नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए. ठीक है, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और कोई फीलिंग नहीं होगा किसी में. दे विल बी पार्टिसिपेटिंग. और उसके बाद है टेकिंग टर्न्स. अच्छा, आप लोग स्कूल में ये तो करते होंगे, कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, एक सप्ताह के बाद आप या रोटेशन या सफल करते हो ना, तो ये क्यों करते हो? व्हाई डू वी डू दिस? सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी नेगेशन इन द माइंड्स ऑफ द किड्स. एम आई राइट? नहीं भाई, एक सप्ताह की बात है, अगले सप्ताह तो आगे आ रहे हैं. बात समझे? तो ये बच्चे के अंदर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आता है. नो, द टीचर इज डूइंग राइट. ऐसा नहीं कि एकदम बैक बेंचर्स बोल के टैग लगा दिए हैं, ऐसा नहीं है. तो आगे जो है वो भी तो बैक बेंचर्स वाला गया, अब बैक बेंचर्स वाला भी तो आगे आया, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा कैसे? भेदभाव हुआ कहां? नेवर, नोवेयर. ऑल आर वन. दिस द इंपैक्ट ऑफ कोलैबोरेशन. नेक्स्ट स्लाइड. ट्रांजिशन, सर्कल टाइम कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिशन बिटवीन अदर एक्टिविटीज. बिल्कुल सही है. इफ इट विल बी इंटरटेनिंग, इट विल बी फुल ऑफ लर्निंग, दैट विल बी डेफिनेटली ट्रांजिटेड टू ऑल. ठीक है, कोविड कैसे होता था याद है? कोविड के एरा में याद है कि नहीं? सब डिस्टेंस बना के रहते थे कि नहीं? व्हाई? बिकॉज इट वाज कॉन्टेजियस. सबको डर लग रहा था, यहां तक कि अपनों का लाश भी नहीं उठाया जा रहा था. सी द एरा.
उस वेदना को आप याद कीजिए, लाश को फेंक दिया जा रहा था, याद कीजिए आप कैसे दूरी बना लिए थे हम लोग। समझ रहे हैं बात को? दिस द फेस विच वी हैव सीन और विच वी हैव ओवरकम। सो वी ऑल आर फॉर्चुनेट दैट वी आर all are alive. Many of the people died at their young stage also. Age doesn't matter. ओवरकम करने वाला राजस्थान का एक प्लेयर है 104 और 101 एज में ओवरकम कर गया, नहीं करने वाला 22 साल का लड़का मर गया। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टूड? सो वी कैन ट्रांजिट, वी कैन ट्रांसफर आवर स्किल्स टू अदर्स एंड वो भी प्रिपेयर करके खुद को स्किल्ड बना सकता है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, अंडरस्टूड? प्लेटफॉर्म की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। नेक्स्ट, conclusion part. Okay, so now any queries or any discussions regarding collective work you want to discuss? It's a discussion round, 2-3 rounds we will do. Yeah. So what do you say in this regarding this? बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही है। जैसे एक फ्रेज और है ना, एक सड़ा हुआ आलू सबको, तो उस सड़े हुए आलू से ही दूरी बना लेना है। आलू को रेगुलरली चेक करना है कि कौन सा सड़ रहा है, मतलब समझे? यू हैव टू एनालाइज कि ये गलत रास्ते में जा रहा है या जा रही है, दूरी बना लेना है। जस्ट कोविड में कैसे सब भैंसुर बन गया था, याद है? या सर इज विलिंग टू से। अचानक से याद आ गया कोविड का इंसिडेंट। डॉक्टर ने कहाँ गए थे, डॉक्टर के पास शायद कोविड के समय में, तो पीछे से एक जन छींका, अच्छी, जितना लोग बैठा था सब उसको देख रहा है, रुमाल निकाल के। माने ऐसा कंडीशन था कोविड के टाइम में, दहशत, छींकना भी बहुत डेंजरस था, है कि नहीं? याद आ गया। एंड आई रिमेम्बर सर, सब कोई, बहुत कोई मजाक भी कर रहा था, नाक में सीख भोंक दे रहा था जान। बस में सीट नहीं मिलता था, कैसे करते थे? सीट मिल जाता था। अब ऐसा भी 1-2 आदमी है जो बोला आपको उल्टी नहीं हुआ सर, तो मन में बोले हम प्रेग्नेंट है क्या जो उल्टी होगा? वो तो एक्सक्यूज था बैठने के लिए खिड़की साइड में, दैट्स इट। तो एक बार और एक रिजिड आदमी था, छोड़ा ही नहीं, फिर बोलता है सर आप उल्टी नहीं की। अक्सर हम बस में ट्रेवल करते थे, अभी भी है, तो आप जानते हैं उसको डेमो देने के लिए मेरे को नारियल खरीदना पड़ा, चबा के उसको एक साइड में पेस्ट कर दिए, फिर पानी लिए और फिर उल्टी का डेमो दिए उसको खिड़की से, ताकि विश्वास कीजिए सच में उल्टी वाला टेंडेंसी था। तो वी हैव टू कीप द हार्ट, अंडरस्टूड? एनी मोर क्वेश्चनिंग, any more discussion to be discussed? Afterwards we'll hand over to Shukla sir regarding collaborative act, teamwork, circle dynamics. I hope it is clear. I hope you all are satisfied. Am I right? Okay, then thank you so much. Now I am handing over my mic to my honorable sir, Shukla sir. Thank you sir. Thank you sir. Again, I am here with module 4, okay, and my topic is process of feedback immediately after lesson. So do we need feedback or not? The question is that. Answer is, it should be yes, isn't it? Because जैसे ही हम लोग का मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 कंप्लीट हुआ और हम लोग बाहर निकले, तो जितने जनों को मैं पहचानता हूँ सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि प्रेजेंटेशन कैसा रहा। किसी ने कहा अच्छा हुआ, किसी ने बोला ठीक रहा सर, किसी ने कहा एवरेज। तो फीडबैक क्या करता है हमें? यह हमें और मोटिवेट करता है, अपनी गलतियों को पता लगाने में मेरी मदद करता है, कहाँ हम सही थे, कहाँ हम गलत हुए, कहाँ पर हम लोग को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वी ऑल नीड फीडबैक। Without feedback, we cannot improve, isn't it? It is just our rectifying our mistakes, the mistakes what we are committing in the classroom. Understood? So, our module will start, but this feedback should be kept immediately, instantly. कोई बच्चा क्लास में जवाब देता है अच्छा, तो हम लोग क्लास में ही बोलते हैं वेरी गुड। वो क्या करता है, दूसरा बच्चा तुरंत हर सर सर सर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसमें क्या होता है?
सारे बच्चों में ये बात लग जाती है कि हम अगर जो सही बोलेंगे तो हमको फीडबैक मिलेगा, लेकिन अगर कोई फीडबैक ना मिले तो, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, कोरिलेशन. कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इट इज एप्लीकेबल in the process of teaching. Either it is positive correlation or it is negative correlation, or somewhere it is no relation. So while we are in the classroom, we are getting either positive feedback or negative feedback, or sometimes there is no feedback at all. As an observer, we have to keep our eyes on the vigilant students कि क्या वो लोग क्लासरूम में बोर हो रहे हैं. अगर नो फीडबैक है तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं है. फीडबैक तो आना ही चाहिए. फीडबैक अगर जो बोले कि नहीं सर ये तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन और अच्छा से बताया जा सकता था और अच्छा से समझाया जा सकता था. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. टेल मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट कंटेन्स द लेटर्स A, B, C, D, E, F. It contains all the 6 letters. It is the shortest word in English. Anyone? Anyone? The answer is itself feedback. It contains all the letters. Next slide. Just see, it's feedback. So don't forget that feedback is one of the essential element of good communication. In the previous module, what we have discussed, the nuances of speech delivery. Speech means we are going to communicate some of the things to our dear and beloved students. So whenever the communication is going on, it should not be one-way communication. Both-way communication is needed. And what communication we are getting in return, that is feedback. Okay? Suppose you are sending a message to someone with very important information, but you are not getting any answer. So what will be the result? Your information is incomplete. Two-way communication is needed. Okay? So teaching involves some important parts of communication. Until or unless you are getting your feedback, this process of communication is incomplete. Okay? Whenever you are getting the feedback, it should be treated as a positive criticism. Criticism is there is no doubt about it. But it is positive criticism. What for? For further improvement, for further clarification. So everyone in this world needs feedback. When we are watching the cricket matches at our home, we are giving feedback to the player. When some singing competition is there, as a result, on the basis of their evaluation process, we are providing feedback. So, whenever you are telling a particular thing or just starting a chapter in the classroom, at the end of the chapter, you will get some feedback. What kind of feedback? When the questions are thrown to the students, they will write the answer. Okay, sometimes the surveys are going to be conducted on the basis of the performances of the students as well as the teachers. We are all knowing that on 4th December we are having a survey named Parak. What for? We are going to give some feedback on the basis of the performance of the student. So everything is based on this feedback. Next slide please. So just you see, feedback is an essential component of every successful communication. Feedback completes a two-way communication. It ensures the successful delivery of a message. In this session, we shall talk about the importance of feedback in the communication. So, as I have told you earlier, it is a two-way communication. Okay? First part is the sender, second part is the receiver. Sender will never give the feedback. It should never be one-way communication.
So whenever we are going to give you a message, now what you are feeling, it's feedback. What you have learned from the training session, training program, what you are going to apply, the topics. Somebody is writing themselves, somebody is copying from others. So feedback, if you are going to give your own feedback, it is going to be very much important. So in the process of communication, in the process of teaching, there is a importance of feedback. Why do we need feedback? I have told you earlier, for further improvement. Because there is no complete or perfection of any work in the world, but there should be some improvement after each and every activity. So as we have studied the Newton's third law of motion, in every action there is an equal and opposite reaction. यानी हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया है और वही प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है ना? हम लोगों ने संगीतों में भी सुना है कि जो बोएगा वही पाएगा, अपना किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या? सुख दुख है आपके कर्मों का फल। तो आपके कर्मों का फल ही आपका फीडबैक है जो आप लोगों ने पहले दे रखा है, लेकिन ये देने वाला कोई दूसरा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे क्या है कि हम लोग आग्रही होते हैं, जानने के इच्छुक होते हैं कि वर्क कैसा रहा। ये फीडबैक कभी कभी हम लोग को डिमोटिवेट भी करता है। जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है पूरी मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, तो कभी कभी हम लोग डिस्करेज्ड भी हो जाते हैं। लेकिन फर्दर हम लोग उसी फीडबैक से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं। ग्रामर के एक बहुत बड़े विद्वान हैं पाणिनि, आज तक उनकी तुलना में कोई उतना बड़ा विद्वान नहीं हुआ। इनके बचपन का नाम बोपदेव था। एक बार वो बहुत परेशान थे और वो आत्महत्या करने जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा क्या कि जिस पनघट पे औरतें पानी भर रही हैं, वहाँ पर रसरी आते जाते एक निशान पड़ गया है। वहाँ से उन्हें शिक्षा मिली और फिर उन्हें तत्पश्चात लिखा कि मानवमति मेरी पत्थर से है नहीं कठोर, इस मानवमति के कारण मानव जग में है सबका सिरमौर। यानी उनको जो फीडबैक मिला उनसे उनके जीवन का परिवर्तन आ गया। सो एवरीवन नीड्स दिस फीडबैक, स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सबको फीडबैक चाहिए, ठीक है? हम लोग जनरली उन्हीं लोगों के पास जाना चाहते हैं जो हमें अच्छा फीडबैक देते हैं, या उम्मीद करते हैं जो हमसे अच्छा फीडबैक देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन नेगेटिव फीडबैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक्स ही हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को थोड़ा ऑफ कीजिएगा। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक। ओके, देखिए हाउ डज दिस सिस्टम ऑफ फीडबैक वर्क्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसको सुनिएगा अच्छा से। द फर्स्ट पार्ट इज सेंडर और मैसेंजर। आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे देते हैं, लैपटॉप चेक करते हैं कि नहीं, क्या मेल आया? अगर मेल रहता है कि हाँ आपको यू आर शॉर्टलिस्टेड यानी आप टैपर ऑन द इंटरव्यू, आप तैयारी करके जाते हैं ना, लेकिन मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो यानी आपको कोई फीडबैक नहीं मिला। आपने जहाँ के लिए अप्लाई किया है आप उसके लिए योग्य माने ही नहीं गए। तो पहला पार्ट सेंडर का है। और फीडबैक आपको कहाँ से मिलेगा? रिसीवर से, ठीक है? लेकिन इन दोनों के दरमियान एक इनकोडिंग है और एक डिकोडिंग है। इसको अच्छा से सुन लीजिए, ठीक है? इन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट एंड नाउ द मैसेज इज इनकोडेड। कंप्यूटर में भी कोडिंग लैंग्वेज है, जनरल डिप्लोमा इन बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले नहीं समझ सकते हैं। वो कोडिंग वही समझेंगे जो लैंग्वेज को पढ़े हैं। सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सीआईडी हो, सब अपना मैसेज इनकोड करके भेजते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के लोग ही समझ पाते हैं। उसके लिए उन लोग को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम। वो उस मैसेज को समझकर वो अपना जवाब देते हैं, लेकिन उस मैसेज को जब वो समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। अंडरस्टूड? अगर मान लीजिए कुछ बातें आपको जस्ट उल्टे उल्टे शब्दों में बताई जाएं, तो अगला तो सोचेगा कि आदमी कौन सी भाषा बोल रहा है। मुझे तो भारत की सब जुबानें पता है, लेकिन ये कौन सी भाषा बोल रहा है? एक्चुअली उनका लैंग्वेज है।
है ना। अगर जो मैं कहूँ कि है दखे एली के टोकारू, कौन सा भाषा है, तमिल तेलुगु मलयालम कुछ नहीं है, यह है रुकावट के लिए खेद है, इसको बस उल्टा कर दिया। देखिए आप सीधा करके, गवाह ससे का मल्फी रजफी यानी फीचर फिल्म का शेष भाग। लेकिन जो जानता है वो तुरंत बोल देगा, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको धनबाद में उतरना है, सीबीआई का जोनल ऑफिस वहीं है, और आपको सही आदमी रिसीव करने के लिए आया कि नहीं, एक कोड वर्ड दिया गया है। आपको बोलना है आसमान में तारे हैं, धनबाद का ऑफिसर बोलेगा हम तुम्हारे हैं, और चलिए ऑफिस। लेकिन जो अननोन पर्सन है वो जैसे ही बोलेगा आसमान में तारे हैं, वो बोलेगा तालाब में मछलियां हैं, पेड़ में चिड़िया है। वो तो डिकोड नहीं कर पाया ना। जो डिकोड नहीं कर पाएगा वो आपको फीडबैक भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। आपके टीचिंग को जो नहीं समझ में सकेगा वो आपको फीडबैक नहीं दे पाएगा। आपको फीडबैक देने के लिए आपके लैंग्वेज को, आपके टीचिंग को, अगले को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी देखिए, फिर से मैं इसको 4 पार्ट में बांट देता हूँ। सेंड करने वाला, सेंडर या मैसेंजर, वॉट एवर, द मटेरियल्स जिसमें उसने आपको भेजा, थर्ड जिस पार्ट्स में उसने उसको इनकोड किया, फोर्थ जिसके पास पहुंचा उसने डिकोड किया, उसके बाद वो फीडबैक भेजा। नाउ द प्रोसेस इज कंप्लीट। अगर आपको ऐसी किसी जुबान में गाना सुनाऊं और मैं बोलूं पहली 2 पंक्तियों का अर्थ बताइए, आप हमको फीडबैक दे सकेंगे? क्योंकि आपने गाने को डिकोड नहीं कर पाए। इनकोडिंग मेरा सही रहा, लेकिन आप डिकोड नहीं कर पाए, इसलिए आप फीडबैक नहीं दे पाए। तो अगर आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ओवर और अबाउट टू कंप्लीट, एंड दिस फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, जिसके ऊपर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कंसिस्टेंटली फीडबैक नहीं लेता, सबका फीडबैक मिल जाता है। एग्जामिनेशंस का मंथ स्टार्ट होगा, रिजल्ट निकलेगा, हर स्कूल का अपना एक फीडबैक जाता है डीओ ऑफिस से, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर या तो उनको पुरस्कार की राशि मिलती है या स्थानांतरण का चिट्ठी मिलता है। तो आप जान लीजिए ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब टीचर क्लास में टीच कर रहा हो। लेकिन बात यह है कि इंस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए, ठीक है, टीचर की तरफ से भी फीडबैक मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, इट इज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स ऑल्सो। टीचर is a problem solver somehow, but he or she should get the right kind of feedback. Without diagnosis, we cannot prefer the medicine, we cannot suggest the medicine. So when the process of diagnosis is going on, that means you are getting the right kind of feedback. अगर कोई ये नहीं बताए कि आपको क्या बीमारी है एक्चुअली, तो डॉक्टर दवा दे नहीं दे पाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, वो आपको बातों में उलझा कर पूछता है कल आपने क्या खाया था, आपको कितने दिनों से ऐसी तकलीफें हैं। एक्चुअली वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो फिर डायग्नोसिस कर पाएगा। तो ये फीडबैक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिस बनता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक अप्रोच। ए टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर, सारे स्टूडेंट्स उसके लिए बराबर हैं, वो सबको क्लास में एक रूपता बनाए रखने के लिए वो सबसे फीडबैक का चाह रखता है। सबसे, जो क्लास में कोना में बैठा है उससे भी पूछते हैं तुमको समझ में आया, तुम समझे। क्लास के जो टॉपर से तो समझ गए, लेकिन जब तक ईच एंड एवरी स्टूडेंट नहीं समझेंगे तब तक मेरा फीडबैक का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेटिक अप्रोच बनाए रखने के लिए भी हमको फीडबैक की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन मैंने बताया। अब ये थर्ड वे कम्युनिकेशन क्या है, उस फीडबैक के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, अगर जो मुझे कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करके रखने हैं तो मैं क्या करूँगा, अपने कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाऊँगा ताकि उसका वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। मैंने बताया कि अगर जो आपको प्रतिक्रिया सही नहीं मिलती है आप लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर स्टूडेंट्स का रेगुलर क्लासेस के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे,
आप बोलोगे सर मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट ने सही फीडबैक नहीं दिया, एक्चुअली स्टूडेंट समझ नहीं पाया था, लेकिन वो किसी डर से बोल दिया कि नहीं हमें समझ पाए हैं, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, इट विल रिमेन अनइफेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एरियाज, देखिएगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ है पता है? उन रिमोट एरियाज में जहाँ पर बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करता, जहाँ पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उनको टैक्स कम लगेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हर जगहों पर हम लोग कुछ टॉपर्स और ब्रिलियंट स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, लेकिन हम लोग को एरियाज़ में उन एरियाज में ज़्यादा मेहनत करनी है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं या वीक स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर जिन एरियाज़ में हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो वीक एरियाज़ हैं, जो फीवल एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमको क्या करना है, अगर जो हमको सही फीडबैक मिलेगा तो उन एरियाज़ का हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली इट इज़ नीडेड कि अगर जो हमको फीडबैक सही मिलेगा तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? सर बच्चे कुछ नहीं समझ रहे हैं। बच्चे क्लास में अटेंटिव क्यों नहीं है? सर बच्चों को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप समझ पाएँ तब आप समझा पाएंगे। जो खुद नहीं समझा, जैसे सर ने कहा, जिसमें खुद दीप प्रज्वलित नहीं हो रहा दूसरों को नहीं जला सकता। तो फीडबैक अगर जो मिलेगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग भी कंप्लीट होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल सही नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। क्रिएटिंग हेल्थी रिलेशंस एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, जैसे देखिए कि फीडबैक से किसी का तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी को पनिशमेंट के लिए तैयार करें। अगर कोई टीचर पूछ रहा है कि क्लास में वीक स्टूडेंट्स कौन है, तो टीचर का फीडबैक जो है ऐसा ना हो कि उनको पनिशमेंट किया जाए। हमको ये फीडबैक से क्या होगा कि उन कमज़ोर बच्चों को हम और अच्छा बना सकें ताकि वो एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये जो रिलेशनशिप बनेंगे, हेल्थी रिलेशनशिप्स, यानी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा जो फर्दर हमको हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स कभी भी कोशिश नहीं करेगा टीचर को ह्यूमिलिएट करने की, हेल्थी रिलेशंस वही करते हैं। आज हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सब श्लोक आपको नज़र आता है कहीं पर कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मान रहा है? कहीं भी किसी भी एंगल्स में मौका मिलने पर ही वो एक मीम्स बना के छोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग चूक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग टू मच प्रोफेशनल्स हो जा रहे हैं, क्योंकि हमको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, हम जान ही नहीं पा रहे हर बच्चों की बात। जिस दिन जान जाएंगे, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा, राइट काइंड ऑफ फीडबैक मिल जाएगा, हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अगर जो कोई डायरेक्शन ही गलत बता दे, अगर जो हमको डीसी चौक से हम पूछ रहे हैं हमको मिलेनियम स्कूल आना है और कोई हमको हवाई अड्डा की तरफ भेज दे तो हमको मिलेगा ही नहीं स्कूल। हम तो रानीश्वर से रघुनाथपुर निकल जाएंगे और कोई नहीं रहे, सीढ़ी दार्जिलिंग मोड़ पहुंच जाएंगे हम। हमको फीडबैक सही मिलना चाहिए कि नहीं सर आप सही आए हो, इधर राइट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न ले लो। जैसे लेफ्ट टर्न लिया देर सवेर हम तो पहुंच ही जाएंगे। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव, जैसे कोऑर्डिनेशन मैंने बताया, ये जो सारे सिस्टम हैं एडुकेशन का, एडुकेंड का, एडुकेटर का, दे ऑल बी कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन के बिना कोई भी प्लानिंग वर्क नहीं करती है, एंड प्लानिंग इटसेल्फ सेज वेल प्लान्ड हाफ डन। तो अगर जो एक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव है तब हम लोग का ये फीडबैक का इंपॉर्टेंस मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन कोई नहीं कर रहा है, जिसको फीडबैक, अगर आप लोग फीडबैक भर रहे कोई नहीं पढ़े तो स्पेलिंग उसका क्या लिखा गया आंसर कोई नहीं चेक करे तो कोई नहीं भरेगा नेक्स्ट टाइम से, या टेबल पे पड़ा रहेगा। आपको उम्मीद है कि हम लोग फीडबैक भर रहे हैं, कोई पढ़ेगा, इवैल्यूएट करेगा, इसलिए ध्यान से किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबके कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्म्स ऑफ फीडबैक। बहुत चल रहा है सब इमोजीज। अब एक एक इमोजी क्या क्या कहता है आप लोग बताइए। हम लोग अब जवाब नहीं देते कि इमोजी भेज देते हैं। आई एम फीलिंग सैड,
रोता हुआ एक इमोजी, जीभ निकाला हुआ इमोजी, आंख टेढ़ा किया हुआ इमोजी, देखिए कितने सारे इमोजीज हैं। अच्छा बताइए, सबसे फर्स्ट इमोजी क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? प्लीज टेक योर माइक। हैप्पी। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन, आधा जीभ निकाला हुआ है जो, ये सब अभी बहुत प्रचलन में है। अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते तो आप कम्युनिकेशन में भी आधा हैं। आप कोई जवाब नहीं देगा, इमोजी भेज देगा। अगर आप इमोजी को स्टडी नहीं कर पाते तो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं नहीं बता पाएंगे। सेकंड वाले क्या कर रहा है? आधा जीभ निकाल के यस यस, नॉटी। थर्ड वन, जोर से बोलिए, इट इज नॉट ऑडिबल, बोलिए, सही बोल रहे हैं। लव सर। यस, आवाज में बुलंदी आ गई आपकी, गुड, एक क्लैप होना चाहिए उनके लिए। अच्छा, फोर्थ वन, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, वो खुशी से मुंह बना रखा है। और ये वाला, दिस वन, पूरा दांत निकाल के, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद वाला, ये तो सबको पता है, रिसेस के बाद सारे टीचर का ऐसा ही फेस हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये इमोजी सबको पसंद है, बिकॉज टीचिंग इज वेरी टायरसम जॉब, यू नो। मैंने बताया ना कि शुरू शुरू में लोग आ जाते हैं जोश में। एक तो होता है ना कि बाई चॉइस और बाई चांस, तो बाई चॉइस वाले लोग अब कम हो गए हैं, बाई चांस ही आ जाते हैं। और शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, यंग एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाएगी तो एक लॉ अप्लाई होती है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। धीरे धीरे आपकी उम्र घटती चली जाएगी और जो बच्चे आएंगे वो नए नए बच्चे, तेज तरार बच्चे, वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर आप सोचेंगे अरे यार हम किस प्रोफेशन में आ गए, क्योंकि ये वर्क ऐसा ही है जहाँ पर आपको कोई रेस्ट नहीं है। आप अगर रेस्ट की बात सोचेंगे तो ये प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं, इसमें रेस्ट नहीं है। आप घर में जाकर भी यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन सोचते हैं, कैसे कॉपी चेक करेंगे वो टाइम निकालते हैं। स्कूल टाइम में लीजर पीरियड ढूंढते हैं, लीजर पीरियड आपके लीजर के लिए नहीं है। तो ऐसे टाइम में जान के रखिएगा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ब्लैक वाला कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। दिस वन, बोलिए प्लीज, चश्मे पहनकर, गॉगल्स पहना है वो, स्मार्ट है। और उसके बाद वाला, ये वाला दुखी है, वो महादुखी है, वो सबसे दुखी है। महादुख के तो कई कारण हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी है। दिस वन, ये सरप्राइज्ड है, पता नहीं क्या हो, कैसे हो गया, कैसे यार तुम टॉप कर गए, तुम तो कर रहे थे हम फॉर्म भरे ही नहीं है, अचानक आया कि यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद वाला देखिए, उसके बाद वाला क्या कहता है अमित सर, वो बोलता है सब चलता है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर वाला रेड आईज, ये इमोजी भी बहुत पॉपुलर है, बोलिए। लास्ट वन के आगे वाला जो है, ये नए रिलेशंस को दिखाता है, पुराने हटने के बाद नए में मैं आ गया हूं। और लास्ट वन, ये जो है इसके आंख से आंसू गिर रहे हैं, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। ओके, सो ये सब फीडबैक्स हैं। अभी अगर जो मान लीजिए कि मैं आपसे बात ना करूं, सिर्फ आपको इशारों में दिखा दूं एवरीथिंग इज ओके, वहीं से कुछ पूछ रहे हैं, मैं वहीं से पूछ रहा हूं, माइक नहीं लिया, और इज द प्रेजेंटेशन, मतलब नहीं है ठीक आपका, उतना कोई बोलेगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो ऐसे फीडबैक भी ऐसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन? ओके, एजुकेशन के प्रोसेस में मैंने बताया कि जिस चीज को सबको इंतजार रहता है वो कि फीडबैक,
जैसे कि अगर जो कोई बोला कि मेरा भाई एक स्कूल में ज्वाइन किया है, दूसरा बोला कि हम उस सर को पहचानते हैं, सबसे पहले क्या पूछेंगे, सर कैसा पढ़ा रहा है ना? तो उस तरह से जब आप स्टूडेंट्स को कॉपी में गुड लिख के देते हो, वो नेक्स्ट दिन और कॉपी लेके आता है, वेरी गुड लिख के देते हो और लिखने की कोशिश करता है। तो फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड फीडबैक इज वेरी needed in the process of teaching. So we are going to state some of the important facts regarding that. Change कीजिए इसको। एक वीडियोस है, इसको आप देख लीजिए, साउंड दीजिए इसमें। Improvement in teaching and learning. It is an integral part of every teacher's practice and, when used effectively, can improve student learning by as much as 8 months. As teachers and school leaders, it's essential to understand what evidence-based feedback is if we're to unlock the greatest possible benefits for our students. So, what does the research tell us about feedback in teaching? Feedback is an ongoing process of goal setting, gathering evidence about student learning, and providing instruction that makes clear the next actions to improve performance. Feedback can be given by the teacher, peers, or the student themselves. 2 evidence-based models for feedback have been developed by Hattie and Timperley and Black and William. Both models propose 3 important questions for both the student and teacher to consider. Where is the learner going? Students and teachers need to be clear about the learning goals and what success looks like. Goals need to be appropriately challenging so the students can succeed and grow. Where is the learner right now? Evidence is gathered about the student's knowledge, skills and performance relative to the learning goals and tasks. How does the learner get there? This involves clarifying the steps the student needs to take to achieve the learning goals. If needed, the teacher adapts or changes the teaching and learning activities to meet the student's needs. Feedback can be directly related to the learning task, which is useful. However, feedback about the processes underlying the task or about how students self-regulate their learning is more powerful. So, what are the benefits of effective feedback? Research indicates that effective feedback can increase student effort and outcomes, lead to more effective learning strategies, and improve student self-regulation. The benefits for teachers are also significant. Effective feedback practices provide evidence about student learning related to learning goals and the curriculum. This helps teachers understand the impact of their teaching and, if needed, where to adapt strategies to better meet the needs of their students. To improve and sustain good feedback practices, it is vital that educators work collaboratively. School leaders can support teachers by prioritising feedback and implementing a whole school approach, providing access to resources and opportunities for professional learning and collaboration. Teachers can develop their feedback practices by communicating clear learning goals, trialling activities that provide evidence of student learning, planning for task, process and self-regulated feedback, checking that students understand and act on the feedback provided, and working with colleagues to develop and refine feedback practices. Feedback is evidence-based and inexpensive to implement. It offers a powerful approach to enriching teacher practice and significantly enhancing student growth. For resources that will help you improve your feedback practices, visit aitsl.edu.au. Okay, so though the sound was not very clear, but it says the importance of positive motivation or positive feedback, and some of them are negative feedback. So it influences a lot. When we give positive feedback to the students, they try to deliver their best. When the negative feedback comes, the students are generally demotivated and they are never trying to give their best in any conditions. So we can show this thing with the help of a drama. I will invite 2 teachers and 2 students. 2 students means they are teacher-student, but they will act just like a student here. One teacher will show the effect of positive motivation, another teacher will show the effect of negative motivation.
Please, sir. Please, ma'am. You will get time for 3 or 4 minutes. इसमें एक स्टूडेंट को भी बुला लीजिए, किसी को भी स्टूडेंट के रूप में, और एक टीचर आइए जो नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट दिखाएंगे. प्लीज, एनीवन. नहीं, आप स्टूडेंट्स को पहले पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, फिर उसका इफेक्ट बताइएगा. शॉर्ट में एक नेगेटिव फीडबैक देंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे. यस सर, प्लीज, एनीवन. कोई एक जन आ जाइए. मैम आप ही आ जाइए, और 2 सर आ जाइए प्लीज. प्लीज सर. कोई 2 सर आ जाइए प्लीज. नो वन इज कमिंग. वेरी स्ट्रेंज. प्लीज, आपको कुछ करना नहीं है, खाली आपको डांट खाना है और एक जन को मोटिवेशन मिलना है. आप पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिएगा सर को. और चलिए सर, आप सर. हेलो. सो जस्ट सी, हम लोग क्लास में तो बच्चे को बेतहासा डांट देते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है. वो एक तरह से फीडबैक का काम करता है. देखिए, एक जन को डांटने पर उसका कैसा फीडबैक आता है इन फ्यूचर, और एक जन को पॉजिटिवली मोटिवेट करने पर कैसा आता है. ये एक्ट है बहुत बड़ा, हम लोग शॉर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. हाँ. पॉजिटिव और नेगेटिव उसका, कि अगर हम उसको पॉजिटिवली कहीं शो किए तो कैसा रिएक्शन हुआ, और नेगेटिवली उसको अगर शो किए तो कैसा रिएक्शन हुआ. हाँ, यहाँ हम थोड़ा सा शो करेंगे इसको, कि जैसे इन आवर क्लासरूम बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन हमारे क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ जो बच्चे वीक सेक्शन के होते हैं, तो मेन हमारा एम रहता है उनको फ्रंट में लाना. कभी कभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है. जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट को बार बार डीमोटिवेट करते हैं, सपोज दैट अगर हम मान लिया हमारी कोई बच्ची या कोई स्टूडेंट हमारा हमेशा ऑल टाइम फेल करता है, और हम और किसी फील्ड में वो बहुत अच्छा है, सपोज दैट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है बट एकेडमिक में वो बहुत बुरा है. अब जब मार्क्स का टाइम आता है तो हम उसका गुड और बैड, मैं दोनों आपके सामने एक सीन क्रिएट कर रही हूँ. जैसे मान लिया अगर वो बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं है सपोज दैट, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जब रिजल्ट आता है तो हम उसके सामने टीचर ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं. हाँ, जैसे ये बच्चा मान लिया कि एकेडमिक में अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है. अब एज ए टीचर जब हमारा रिजल्ट आता है, सारा टाइम तुम खेलते ही रहो, पढ़ना लिखना तो है नहीं. आखिर तुम्हारा मेन एम स्कूल में क्या है, पढ़ाई, वो तुम करो नहीं, बस खेलो. जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सचिन तेंदुलकर ही बन जाएगा, देखते हैं. लेकिन लास्टली अगर सपोज दैट सचिन तेंदुलकर तुम बन भी गए, मैट्रिक का रिजल्ट में तो लाना है ना, पास तो करना है ना. तो बस तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं है, बस ठीक है स्कूल में एडमिशन मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, हमें ढोना है, हम ढो रहे हैं, बाकी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है. ये एक नेगेटिव है. अगर हम इसी को पॉजिटिवली कहें, कोई बात नहीं है, हर बच्चा सभी चीज़ में सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, एकेडमिक अच्छी बात है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ो, गुड. तुम अपना करियर एक काम करो, स्पोर्ट्स में ही देखो. आजकल बहुत ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे गए हैं, और जब वो अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं तो वो पढ़ाई अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना करियर उसमें भी बना सकते हो. ये एक मेरे तरफ से था. मैम, we'll show through a act, role play will do. Isn't it, sir?
Okay. Sir will be our sir and we will be act as a student. Yeah, he will do right now. He's going to do that. Good morning, students. Good morning, sir. Now, do hurry up. I have a lot of work today. And the chapter is very large. And your examination at hand. And then I will discuss about this. At first, open your book, page number 23. And I think, what is chapter? Chapter name? My childhood. Very good. My childhood, this is the chapter about for the Abdul Kalam. He is in middle family's child, and that's and you read it. Read it, one paragraph, and then we ask me question. सर कुछ समझे ही नहीं क्या पढ़ाए आप. Oh, then सर तो खाली हवा में उड़ाते हैं सब कुछ. And you? Sir, I got it, sir. I got this point, sir. May I explain, sir? You are very good student, but you don't be desperate. I again repeat it, and you ask again question again, and then I will answer the questions. At first, Abdul Kalam. Who is Abdul Kalam? He is president in our. He was president of our country. वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, and 3 friends he has, and this type of if you learn in mindly and attentionally, then you will make up it. You do it. Every student have capability. You just want again, you do again, and then me ask a question, and then me you show your. Again you read. Yes, sir. You understand or not? Sir, I will try to my best. Okay. Then if you not understand, again you will ask me tomorrow. And there is one, sir, I suppose in the incident of tomorrow, कल की घटना मैं बता रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे जो है अभी कोई क्रिकेटर एक खरीदे हैं शायद 1 करोड़ 12 लाख में, कोई बच्चे को टाइप के हैं कहीं का, अभी जो राहुल द्रविड़ या कोई खरीदे हैं किसी बच्चे को. कुछ बच्चे हमारे पास आए और बोले सर देखिए उनको 1 करोड़ 12 लाख में खरीद लिया. हम बोले देखो एवरी बच्चे में टैलेंट होता है, तुम में भी टैलेंट है, तुम उसमें नहीं सक रहे हो दूसरे में करो. लेकिन उन्होंने क्या किया, कहाँ सर हमारे माता पिता दिन रात बोलते पढ़ो पढ़ो, कभी मौका ही नहीं देते हैं. तो हमने जवाब दिया कि मौका अपने आप को निकालना पड़ता है. मौका और समय किसी को नहीं देती है. मौका और समय खुद चॉइस करना पड़ता है. ये जरूरी नहीं कि हम जहाँ हैं, अगर मैं अमित झा सर का बात करूं तो मैं इनको बहुत पहले से ही जानता हूं. शुक्ला सर से भी मेरी परिचय, बाकी सबसे हम जानते हैं. लेकिन इनका अगर बात करें कि जिस शुरुआत इनकी गांव से हुई थी, आज वह यहाँ तक पहुँचे, तो निश्चित ही काबिलियत ही है. जरूर ही इनकी काबिलियत है कि यहाँ दुमका से उनको दिल्ली तक जाना पड़ा. तो सभी में काबिलियत है, अपने अपने अनुसार हम उसको राइज करना हमको है. सो थैंक यू सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओके सर. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for this excellent performance. So, सर ने बहुत अच्छा बात कहा. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि opportunities never knock on your door. You have to knock on opportunities door and they will be all around you. Opportunities कभी आपके पास नहीं आएगी, आपको उनके पास जाना पड़ेगा. Okay, next slide. Instant feedback serves to reinforce knowledge by correcting mistakes. The more frequent and consistently you take feedback, the better when you follow up learning with immediate feedback. It causes learners to pause, engage, and modify behavior in the moment. Taking feedback instantly as opposed to periodically makes learning an active rather than passive experience. So all of you have to be active learner. आप लोग जब बीमारियों की बातें सुनते हैं, सबसे खतरनाक बीमारी है कैंसर. कैंसर की बीमारी जितनी जल्दी पता चल जाए, उसका इलाज उतना आसान हो जाता है. सेम थिंग अप्लाई होता है आपके फीडबैक में. अगर आपको सही फीडबैक सही समय पे
सही आदमी के द्वारा मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेंगे कैसे हमको इसके ऊपर काम करना है। मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेज इज प्रोटेस्ट, सेकेंड स्टेज इज एक्सेप्ट एंड द थर्ड स्टेज इज फॉलो। तो जब मुझे प्रोटेस्ट वाला नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो क्या हम टीचिंग क्विट कर दें, छोड़ दें? अगर जो मैंने बताया कि है ये प्रोफेशन थोड़ा टायरसम है, चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन भी यही है। पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा एक बार खुद के टीचर होने पर जोरदार ताली बजाएं। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप कोई मशीनरी नहीं बनाते, आप कोई आयरन स्मेल्टिंग नहीं करते, आप कोई टिम्बर मर्चेंट नहीं हो, आप बनाते हो इंसान। ऐसा इंसान जो सोच सकता है, बोल सकता है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। ये क्षमता अगर ईश्वर ने किसी को दी है तो सिर्फ टीचर को दी है। दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान भी टीचर के महत्व को कभी नकार नहीं सकता। ये टीचर की महत्ता ही है कि आज हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को होते हुए, घटते हुए देख रहे हैं। लेकिन टीचर को अपने ऊपर हमेशा रोज एक्सरसाइज करना है इन द टर्म्स ऑफ फीडबैक। उसको फीडबैक मिलेंगे और मैं रेशियो भी बता दे रहा हूँ, इसका रेशियो 70:30 है। 70% आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे, 30% आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे। तो जो 70% आपको नेगेटिव फीडबैक है उसके ऊपर आप जितना जल्दी काम करना शुरू कर दीजिएगा, ये रेशियो घटता चला जाएगा। धीरे 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 पॉजिटिव फीडबैक की संख्या, जैसे जैसे आपकी उम्र होगी, लोग थोड़ा सिंपैथेटिक हो जाएंगे, छोड़ो बूढ़ा टीचर है क्या डिस्टर्ब करें। लेकिन ये सिंपैथी नहीं पानी है। आप अपने नॉलेज से उस क्लास में पूरी तरीके से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिएगा कि बच्चे आपके क्लास के लिए तरसेंगे कि ये टॉपिक जब मैं उनसे नहीं पढ़ा तो मेरा जीना बेकार है, मुझे उनसे पढ़ना है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, हम लोग देखे हैं, लेकिन अभी कुछ संतों का नाम मैं देख रहा हूँ कि प्रेमानंद जी उसमें हैं। लोग रात 1 बजे से 1:30 बजे से रास्ते में खड़े रहते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए। तो कुछ तो बात है उनमें, कुछ तो बातें होंगी। तो ऐसी चीज़ें जब हम लोग इन फीडबैक पे वर्क करेंगे तो हमको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उन सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करने का, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम उतने अच्छे टीचर बनते चले जाएंगे। इसलिए फीडबैक से कहीं पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई बोला कि सर इसमें थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, एकदम उसको हाँ सर मैं कोशिश करूँगा, सर थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा सर। तो ये क्या होगा, धीरे 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 आप कोशिश करते करते इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे कि लोग आपकी गलतियाँ जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे तो चाहे तो ढूंढ सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो आपको शर्ट का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया, आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया, आपको बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, तो हो सकता है। इन फीडबैक से नहीं डरना है। लेकिन क्लासरूम में जैसे मान लीजिए कि मुझे एक आंसर पता है, बच्चे ने सही आंसर दिया लेकिन वो अलग तरीके से दिया, उसको भी अप्रिशिएट करना है। वेल सेड, वेल डन, ब्रावो, बहुत अच्छे, लेकिन बेटा इसको इस तरह भी बताया जा सकता है। लेकिन वो फीडबैक इंस्टेंट होना चाहिए। क्लास हो गया, छुट्टी हो गई, रास्ते में आप बोल रहे हो तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया था, सर आप बोल के क्या होगा, वहाँ बोलते थोड़ा तारीफ भी मिलती है ना। तो एक पूरा टॉपिक ही उस पे है कि इंस्टेंट फीडबैक हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को किस तरीके से इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ये फीडबैक की बहुत अच्छी भूमिका है। और इसमें देखिए ये 2-वे कम्युनिकेशन की बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेंडर फीडबैक नहीं देगा, रिसीवर फीडबैक देगा। सेंडर तो भेज रहा है इनकोड करके, वो डिकोड करके फिर आपको फीडबैक देगा। जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा आप फर्दर उसमें और इंप्रूव करते चले जाओगे। ठीक है, फर्दर इंप्रूवमेंट का नतीजा ये होगा कि धीरे 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 आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे, मास्टरी ओवर दैट, वेल वर्स्ड हो जाओगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, और बेटर, गुड बेटर बेट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड बेटर एंड बेटर बेस्ट। देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये जो बेस्ट वर्ड है ना, ये हम हमेशा बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट। ये बेस्ट किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, और जो बेस्ट एप्लीकेबल होता है जिसके लिए, वो और फर्दर रिफाइनमेंट की तरफ बढ़ता है कि मुझे ऐसा कुछ क्या करना है। देखिए आप यूट्यूब वीडियोस में
नई नई चीज़ों को लोग को लेके आ रहे हैं, वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, वही लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कितने बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं कि उनके मिलियन फॉलोअर्स हो जा रहे हैं। और हम लोग उसी को हम लोग अगर पुराने अंदाज में पढ़ाएंगे तो जो पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो फीडबैक मिलता है, मोर लाइक्स मतलब क्या है? पॉजिटिव फीडबैक, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। जैसे कोई मूवी हिट है या नहीं कैसे जानेंगे? कोई पिक्चर हिट हो रही है या नहीं कैसे जानेंगे? सीरियल ज़्यादा पैसे बटोर रहा है टीआरपी से, लोग पसंद करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और इसी कारण से वो ज़्यादा चल रहा है। तो एक टीचर कैसे जानेगा कि उसकी पढ़ाई को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं? उसके पढ़ाई के दरमियान बच्चों की संख्या नहीं घटेगी, आपके क्लास को में नहीं मिस होने देंगे। जैसे ही बोलेंगे आज 5th पीरियड में छुट्टी हो जाएगा, तो बोलेगा नहीं सर 6th पीरियड होने दीजिए, इन सर का क्लास होगा तभी छुट्टी होनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? और अगर जान जाएगा कि 5th पीरियड में एक पार्टिकुलर सर का क्लास है, तो सर टिफिन में छुट्टी कर दीजिए, 5th पीरियड तक नहीं जाएंगे। तो ये जो बताया जा रहा है ना, ये बच्चा प्रिंसिपल को फीडबैक दे रहा है, उसी पे नहीं बता रहा, वो फीडबैक दे रहा है, और प्रिंसिपल को भी पता चल रहा है कि यहाँ पर इनके क्लास को पसंद नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बच्चा पॉजिटिव फीडबैक कब देगा? जब हम लोग जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है ना, उस तरह हम लोग उन कमियों को अगर जो पता कर लेंगे और उस पर तुरंत काम करेंगे। सर ये वाला थोड़ा और बताइए ना, हाँ ठीक है हम कल बता देंगे बेटा, अभी इतना तक रखो। हम अभी बता रहे हैं फ्यूल्स मैनेजमेंट, कल बताएंगे टेलर्स मैनेजमेंट। भाग नहीं रहे हैं, आज टाइम नहीं है, लेकिन कल मैं श्योर बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा इंतजार करेगा उस क्लासेस के लिए। नेक्स्ट वन, make sure feedback is taken in real time, that is instant. When feedback is taken in real time, it is more relevant. अगर लक्ष्मण के बेहोश होने पर हनुमान जी संजीवनी बहुत देर से लाते तो क्या होता? आज रामायण अलग होता। इंस्टेंट वर्क का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के लिए किसी को डॉक्टर बनने की जरूरी नहीं है, जरूरत है ही नहीं। First aid is a treatment which we give to the patient before the arrival of the doctor. उसके बाद specialist person will take care of that. So remember my dear teachers, जब भी हम लोगों को फीडबैक देने, वो इंस्टेंटली होना चाहिए। इंस्टेंटली फीडबैक का असर अलग होता है। आपको प्यास लगी है, आप तड़प रहे उधर से उधर, जब प्यास खत्म हो गई तो आपको बहुत बड़ा एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल दिया गया, इससे क्या ज़रूरत है? आपको भूख लगी है, खाना नहीं मिला उस समय, खाने का टाइम पार हो गया, उस समय आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सो एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस। जस्ट लर्न द जियोलॉजिकल प्रोसेस इन जियोग्राफी। उसी रॉक स्ट्रक्चर से सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसी रॉक स्ट्रक्चर में मिनरल्स भी एम्बेडेड हैं। वही रनिंग वाटर, रनिंग विंड सॉइल को फॉर्म भी करता है, वही रनिंग वाटर, रनिंग विंड सॉइल को डिग्रेड भी करता है। द फैक्टर्स आर सेम बट द टाइम इज डिफरेंट, सो इट टेक्स टाइम। तुरंत क्या होने पे क्या होता है? तुरंत मोटिवेट। जैसे आप देखिए कोई कुछ छोटा बच्चा है ना, जब कुछ करके आपको दिखाता है कि मैम देखिए हम हेलीकॉप्टर बनाए, जैसा भी बनाया, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी, आप क्या करते हो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वो कल 2 हेलीकॉप्टर बना के लाता है और घर में बोलता है कि मैंने बनाया, मैम बहुत खुश हुई। यानी वो जानता है मुझे कुछ बनाना आता है। एक छोटा बच्चा एक कविता लिखा, सर तो बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, इनकी बुक भी पब्लिश हो रही है, अवार्डी भी है वो, लेकिन छोटे बच्चे कैसे कविता लिखते हैं? वो लाइन लाइन जोड़ देते हैं। मतलब लाइन का जुड़ना मतलब कविता। कौवा करे काँव काँव, कहीं धूप कहीं छाँव, और गधा चरे घास, न कोई आस न कोई पास। उसमें भी वाह बहुत अच्छा लिखे। बाद में वो रिप्लेस कर देगा, इस काँव को भी रिप्लेस कर देगा और छाँव को भी, और उस गधे को भी रिप्लेस कर देगा। बाद में वो धीरे धीरे लिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिए, वो हमेशा के लिए लिखना बंद कर देगा। तो बस यही जो इंस्टेंट फीडबैक है, देखिए पहला जो काम करेगा वो बहुत असर करेगा, लेकिन हम लोग अगर जो सारे धर्म ग्रंथों को देखें तो महाभारत की एक असीम भूमिका है। द्रौपदी के सिर्फ 2 शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, और पूरा महाभारत रच गया। सिर्फ 2 शब्द। अगर वहां पे द्रौपदी चुप रह जाती, नेगेटिव फीडबैक नहीं देती, तो हो सकता है बहुत सारी घटनाओं से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये फीडबैक जो आप दे रहे हो, इंस्टेंटली फीडबैक दे रहे हो, कोशिश करो कि नेगेटिव फीडबैक से बचो, पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करो। ठीक है, किसी ने बता दिया राम किल्ड रावणा, तो हम बताए रावणा वाज किल्ड बाय रामा यार।
हमेशा राम को अपराधी क्यों कर रहे हो? उनके हाथों मारा गया हुआ, क्योंकि उस समय उनका वध जरूरी था। मैंने पहले ही बताया है कि रावण को अगर जो हम लेके मेन प्रोटैगनिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी विशेषताओं को भी बताएं। तो जो फीडबैक है ना, वो बच्चा बताएगा नहीं नहीं सर हमको ऐसा बताए हैं, ऐसा नहीं है सर बताएं वो भी अच्छा था। परिस्थितियां आपको पता होना चाहिए कि दुर्योधन का पहले का नाम सुयोधन था, जहां सर जानते होंगे। परिस्थितियों ने सुयोधन को दुर्योधन बनाया। तो एक शिक्षक को अगर क्लास में दुर्योधन भी मिले तो उसको सुयोधन बनाना है। यही पॉजिटिव फीडबैक का इफेक्ट है। उसको मैंने दुर्योधन से और खतरनाक बना दिया तो फिर क्या लाभ? ये सारे क्लासरूम्स का, इतने सारे लेक्चर्स का, इतने सारे ट्रेनिंग का, इतने सारे प्रोग्राम्स का। फीडबैक तुरंत दीजिए। मैम मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, सच लो तो मार्कर से लिखो। वो लिखा बहुत गंदा ही लिखा, लेकिन तारीफ जरूर कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा ना, वो एक्सपर्टाइज हासिल करेगा। वो देखिएगा जब वर्क मिलेगा, टाइम मिलेगा, मार्कर लाने जाएगा ना, तो जो बोर्ड खाली मिलेगा वो लिखेगा। और विश्वास कीजिए एक दिन वो दोनों हाथों से बहुत अच्छा लिखेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इंस्टेंटली। यस, दिस ऑल इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। इसके बाद वाला चेंज कीजिए। So now we run the conclusion part. From the above information, we can conclude that though the last but most important key or principle to effective communication is to obtain feedback from the receiver. Okay? जैसे अगर जो आपको सब कुछ करने के बाद फीडबैक ही ना मिले तो पूछिए, उससे पूछिए। अगर आप पूछिए, इस स्टूडेंट से पूछिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट बोल दिया सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सब क्या कराया, पानी मिल गया। क्योंकि मैं तो चाहता था कि वो बोले कि तारीफ करे। उनसे पूछिए। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, इनसे पूछिए मैं था कि नहीं, सर मैंने नहीं देखा। जो लोग बचना चाहते हैं, कुछ चालाक लोग हैं ना, वो न्यूट्रल रहते हैं। आपके सामने ही बोला था ना, बोला सर मैंने नहीं सुना, हम नहीं जानते। ये कौन से हैं? ये नो रिलेशन वाले हैं। पॉजिटिव वाले कौन से हैं? आप बोले ना बोले, हाँ सर बोले थे, मैंने सुना था। हम बोले ही नहीं है, मेरे जीभ में घाव है, मैं 3 दिन से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सपोर्ट में बोल रहा है। और नेगेटिव वाले क्या है? मैंने बोला भी था लेकिन वहां पे इनकार कर दिया, सर आप नहीं बोले थे। कहाँ बोले थे, दिखाइए। तो मुझे ये तीनों चीज जो हैं, इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा, और तीनों में से हमको चूज करना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है ना कि सुनिए सबकी और करिए अपनी, अपने मन की। तो टीचर को ये जो सारे मैनेजमेंट के गुण सिखाए जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है उसको। कभी कभी बच्चे आके बोलते हैं सर आपके बारे में नेगेटिव, वो बोला नहीं है बेचारा, मार खिलाने के लिए। टीचर बोला क्या हुआ, हो सकता है किसी कारणवश वो बोल दिया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले बार वो नहीं बोले, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो फीडबैक है ना, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप फर्दर क्या कम्युनिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिएगा अभी इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए, ये दोनों पार्टियों के लिए एक फीडबैक है। जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं उनके लिए भी एक फीडबैक है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 में, उसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर पढ़ाएं, फंक्शन पढ़ाएं, उसके डीमेरिट्स पढ़ाएं। तो बच्चों को रोज के न्यूज़पेपर में वो फीडबैक मिलता है कि दिस इज इन प्रिंसिपल एंड दिस इज इन प्रैक्टिकल। इन दिस वे द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, दीज आर द डीमेरिट्स और द लूपहोल्स ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। ओके, वेदर दे आर गुड लीडर्स और नॉट, इसको टाइम पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये फीडबैक इफेक्ट करता है। जो पार्टी चुनाव जीती उसके लिए भी एक अच्छा फीडबैक मिला, जो हारी उसके लिए भी एक फीडबैक मिला कि क्या चीज़ें अप्लाई होंगी और क्या चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। इस फीडबैक से क्या होगा, ये पार्टी फर्दर और अच्छा करने की कोशिश करेगी, और जिन्होंने चुनाव हारा वो अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फीडबैक दिया किसने? हम लोगों ने, वोटर्स ने। हम लोग की तरफ से जो गया, ये मैंडेट भी है और एक फीडबैक भी है। सो फीडबैक इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अच्छा, क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? आलोचना। वेरी गुड। आलोचना कितने तरह की हो सकती है भाई? हाँ, बहुत तरह की। जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव आलोचना कैसी होती है? प्लीज टेक माइक प्लीज। और ज्यादा टाइम नहीं है, द सेशन इज अबाउट टू ओवर। अच्छा,
और नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होगा? In a positive way, sir, we can appreciate anybody. And in a negative way, we can what could I say? In a negative way, we can discourage anybody. All the discouragement can be considered as a negative. Negative criticism, okay. Okay. Anyone else? So क्या नेगेटिव क्रिटिसिज्म किसी के लिए अच्छा हो सकता है? यस, दैट इज द आंसर. क्योंकि मैं अगर जो कोई बोलेगा कि सर इट इज 6 एंड यू आर टेलिंग इट्स 9, सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट बोथ आर करेक्ट? व्हाट इज 6 फ्रॉम माई साइड, इट इज 9 फ्रॉम योर साइड. जस्ट यू सी, change the sides, come to my side, it will be 6. If I am going to your side, it will be 9. So nobody is wrong, isn't it? The same word, what I have written here 6, it is 9 from your side. You are thinking as a student. That's why your opinion, your notions, your emotions, your feeling, your intuitions are like that. But here I am working as a teacher. Come to my place. I am not your guardian, I am a facilitator. I have to act so many things in which it will work, it will modify, it will rectify, but in a positive way. बहुत अच्छा लिखे, लेकिन थोड़ा सा अगर बोल देते ना तो और अच्छा होता है ना कि सर कैसा बोले. कोई स्टूडेंट लिख के लाता है, सर कैसा लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे, लेकिन थोड़ा सा तुम वर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि तुमने जो कहानी लिखी है ये एक मुस्लिम समाज की कहानी है, इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग करो. सर कैसे, हम तो हिंदी में ही लिखते हैं. हम बोले मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? धनपत राय था, लिखते थे नवाब अली के नाम से, है ना. उनकी रचनाएं उर्दू भाषा में भी हैं. और जब उन्होंने, देखिएगा, जब उन्होंने वैसे कैरेक्टर्स चूज किए हैं, उस भाषा का भी प्रयोग किया है. यही उनके कहानी की विशेषता है उपन्यास की, कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं. आप अगर जो मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ लोगे, यूपी के बनारस में लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था, तो आपको लगेगा आप लम्ही गांव में पहुंच चुके हैं. आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग. मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके सामने वो विजुलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए. तो ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि सर इसमें थोड़ा सा इसका प्रयोग कीजिए, सर थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए. हम लोग बोलते हैं ना कि कैसा है नया बाइक, कैसा है सर, ठीक है सर, सीट बहुत ऊंचा है, लेकिन तो क्या हुआ? नहीं सर, टीचर को अच्छा नहीं लगता. क्यों? टीचर इंसान नहीं है सर? है सर. स्कूल में आप ऐसे लेके आएंगे तो कैसा होगा? आप दूसरे बच्चों को कैसे डांटिएगा? वो हमको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो हमको अच्छा सजेशन दे रहा है. तो मैं बोला एक काम करो यार, मुझे जनरल बाइक ही दो. यहाँ पर क्या है कि जो भी क्रिटिसिज्म होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, हमको दोनों को उसको एक राइट वे में लेना है. अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो मुझे और अच्छा करने की कोशिश करने की जरूरत है. अगर नेगेटिव भी है तो मैं बोला मैं तो इसके बारे में सुना ही नहीं था, मैं सोचा ही नहीं था. सर आप इस टॉपिक के बारे में बोले ही नहीं, आपके स्लाइड में था. अरे यार मैं भूल गया, इतनी जल्दबाजी में, टाइम बाउंडेशन था ना, तो मुझे छोड़ देना पड़ा. वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टॉपिक. कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट एक टीचर का चैप्टर का एक पार्ट का इंतजार करता है कि देखते हैं सर इटालियन यूनिफिकेशन कैसा पढ़ाते हैं. ट्यूशन टीचर तो पढ़ाया ही है, लेकिन सर हो सकता है अच्छे टीचर हो, बहुत पुराने टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, तो हो सकता है इसमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. लेकिन मैंने कह दिया इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, जाओ, सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है. बोला सर सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दीजिए, हमको शॉर्ट में बता दीजिए. तो मैं बोला इसमें देखो कैरेक्टर्स जो हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेजनी रोल प्ले किया था, उसके बाद कैबर का रोल था, उसके बाद गैरीवाल्डी का था. लेकिन ये तीनों राज परिवार से नहीं थे. विक्टर एमेनुअल II को राजा बनाया गया. ये प्रोसेस भी उसी तरीके से है. तो जब मैं उसको थोड़ा में शॉर्ट में बता दिया तो उसको भी इंटरेस्ट आया. लेकिन आप जब उस पार्ट को हट देंगे तो वो लगा, वो अपने क्या सोचेगा, हमको लगता है सर को खुद ही नहीं पता होगा. सर खुद ही नहीं इस बारे में जानते होंगे, आप पहले पढ़ाते होंगे, अभी भूल गए होंगे. तो कहीं पर भी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बच्चा आपकी बुराई कर रहा है. आज जो अच्छे टीचर बने हैं, जो आज बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं, वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट के कारण ही सुधरे हैं जिन्होंने क्लास में क्वेश्चन किया है उसको. वो जाके पढ़ते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नेचुरल. नहीं इट्स नेचुरल. नो सर इट्स नेचुरल. बोले सर मोबाइल है आपके पास?
देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन है, वो तुरंत बोल दिया। अभी तक अंग्रेजी एक लड़की बोलती है इट्स नेचुरल, 3 बार सुनने के बाद चौथे बार क्लास में मैं बोल रहा हूँ ना नेचुरल। तो यहाँ पर सिस्टम है कि एवरी डे वी आर लर्निंग, दैट्स व्हाई इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये फीडबैक जितना उसके लिए जरूरी है वैसा ही फीडबैक हमारे लिए भी जरूरी है। इट हेल्प अस टू सी आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वी मे नॉट नो एग्जिस्ट। ये देखिए मैनेजमेंट के सारे गुण को बताया, अब कंक्लूडिंग पार्ट में है। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो है SWOT एनालिसिस, SWOT। ये भी मैनेजमेंट का ही है, बिजनेस स्टडीज में है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेड्स। ठीक है, एज ए टीचर वी मस्ट नो आवर स्ट्रेंथ्स, we must know our weaknesses, where we need to improve, we need to learn the areas in which you are threatened। क्योंकि आज जो एक्सटिंक्ट है ना, पहले वो इंडेंजर्ड थे। ठीक है, नॉर्मल स्पेसीज, एंडेमिक, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। सो जनरली वी आर इन नॉर्मल कंडीशन, सेम कंडीशन इज गोइंग ऑन। हम लोग शिफ्ट हो गए एंडेमिक टू ए पार्टिकुलर बायोम, टू ए पार्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्टेज इज इंडेंजर्ड, अब आप खत्म हो रहे हो। अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं हुए, नेशनल पार्क नहीं हुए, तो वन डे विल कम व्हेन यू आर एक्सटिंक्ट। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या बताता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिएगा जिनके घरों में अमरूद के पेड़ हैं, सुबह कितना अमरूद गिरा रहता है? क्या सारे अमरूद से बीज से अमरूद का पेड़ उगता है? सारे बीज आपस में स्ट्रगल करते हैं, 1-2 निकलता है। इट इज द रूल ऑफ नेचर। सो यू मस्ट नो आवर वीक पॉइंट्स। कैसे? सर को बोल देना ना, सर को बोल देना बाबा जी पंडितुआ बोल देना, गुस्सा हो जाएंगे। और सर पूरा गुस्सा हो गए कि मैं जाति का ब्राह्मण हूं तो मेरा दोस्त है क्या? आपको नाराज कर दिया ना, वो सफल हो गया। आप डांट रहे हो क्लास बेंच के नीचे, यस देखा, ओके सर, वो कुछ सुधरा नहीं, तो वो जान गया आपका वीकनेस, वो आपको क्लास नहीं करने देगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको बोले तब उससे पहले आवाज रेडी रखिए कि इसे ऐसे करने से, हाँ रे ऐसा ही बात है। पंडित मतलब सिर्फ टिक्की रखना नहीं, एक नॉलेज का स्पेशलिस्ट। तुम्हारे पापा ग्रामर के टीचर हैं ना, इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो भी पंडित हैं। नहीं सर पंडित तो सिर्फ मतलब नहीं, जो भी मास्टरी हासिल कर लिया वही पंडित है। तो अपने पापा को तो बेस करके नहीं बोल सकता हो। तो इन चीजों को जान के रखिए, स्पेशली द वीक एरियाज, इन द एरियाज वेयर यू आर थ्रेटेंड। और जब इन सारी एरियाज में हम लोग प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में, ऐसे तो सब दे आर एक्सलेंट टीचर्स, सब कोई बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एडुकेटेड। कोशिश करेंगे हम लोग और इम्प्रूव करने का। लेकिन ये जो टॉपिक सब बताया गया, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने भी स्टडी करा, बहुत सारे जगहों से लिया। ये हम लोग की तीसरी या चौथी ट्रेनिंग है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोफिशिएंसी से बता पा रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि आप लोग कुछ सीखे होंगे जो क्लासेस में अप्लाई करेंगे, और अगर अप्लाई करेंगे तो ट्रेनिंग का जो मकसद है वो कामयाब हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू। इफ एनी मिस्टेक्स कमिटेड फ्रॉम माई साइड प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू वेरी मच। Yeah, good evening to all once again. So, okay, I request all respected teachers to submit the feedback forms which we gave you. So, I request to submit as soon as possible because it has to be submitted. So our tea and breakfast is almost ready within 7 to 8 minutes. So till then, I would like to
call my respected teachers to perform any act or show your skills which you are having, because all are